You are doing well. Today's target is to solve question number 9.2, and we are with the chapter cost of capital. It's ninth chapter. 9.1 has already been completed. So here we are at 9.2. Before starting this question, I would like to explain two main categories of financing whenever it is capital financing. Capital by itself means any amount which is invested by the proprietor of the business is called capital, but here there is a little twist. If you are investing in any venture where the investment has longer period of time, that is called capital financing or capital investment. Suppose you have invested your amount for 10 to 15 years, 5 years, 6 years, more than 1 year. It is called capital investment. Now let's say if proprietor of the business is providing or investing his own amount into the business, one part of this word is called capital, and since it is being provided by the proprietor, you may collectively call it capital financing. कैपिटल आपको पता है कि जो कारोबार का मालिक जो कारोबार में पैसे लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं. सो फाइनेंसिंग विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस और organization by itself is called capital financing. There are two major sources of this capital financing. If financing or investment by the proprietor is being made by his own money, that would be considered equity financing. And when amount is being taken from any other source as a loan, that would be called debt financing. All right, so for the time being we are concerned with debt financing, and later on we will see how proprietor can invest by his own money. And for the time being, what I was saying, we are related with debt financing. अगर कारोबार का मालिक किसी और से पैसे उधार लेकर कारोबार में लगाए तो उसे आप डेट फाइनेंसिंग बोलते हैं. अच्छा, इस डेट फाइनेंसिंग में ओबियसली कुछ इनफ्लोज और आउटफ्लोज होंगे. इस चीज़ को अभी थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दीजिए. और नाउ लेट मी नो इफ़ देर इज़ डेट फाइनेंसिंग, तो हाउ यू विल कंसिडर विच अमाउंट इज़ आउटफ्लो एंड विच अमाउंट would you be considering as your inflows. यहाँ एक बात समझनी है. if proprietor has taken a loan from any organization and that amount is invested in the business, as we have earlier described, it is debt financing. So suppose he is taking a loan from outside and that amount is invested into the business, it means amount is coming in. So whatever is coming in is to be considered as inflows. तो जो लोन की अमाउंट बिजनेस के अंदर आ रही है उसको आपने इनफ्लोज का नाम देना है. अब ऑब्वियसली इट वुड बी हैविंग सम कॉस्ट. if you have taken loan from bank or any other organization, there will be a particular or specific rate of interest to be applied upon that loan. तो जब आप उस पर इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, इट मे बी एनुअली, इट मे बी मंथली, इट मे बी बाई एनुअली. सो पर एनम हाउ मच इंटरेस्ट यू आर पेइंग वो आप डिसाइड करेंगे और उसकी अमाउंट आपके पास से जाती रहेगी. इट इज़ कॉल्ड आउटफ्लोज. ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस किया हुआ है. अच्छा, अब इसके साथ आपको कुछ बातों को और भी समझना है. एक सबसे पहले फेस वैल्यू क्या चीज़ होती है. फेस वैल्यू द अमाउंट ओरिजिनली एन एसेट is bought, you may say like that, an amount upon which and the amount upon which original asset is bought. जिस प्राइस के ऊपर आपने एसेट परचेज़ किया हुआ है उस प्राइस को आपने फेस वैल्यू बोलना है. एक और चीज़ आपको साथ में समझनी है, दैट इज़ सेल प्राइस. फेस वैल्यू को आप एक सिंबॉलिकली एफ़ का नाम दे दें
ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब इसे यूज़ करें तो इट कुड बी लिटिल मोर कंफर्टेबल। फेस वैल्यू एफ़ का नाम दे दें और सेल वैल्यू क्या होगी इसके अंदर आप इसको फॉर द टाइमिंग एस का सिंबल दे दें। तो अब इसको सेल वैल्यू को कैसे आप बोलेंगे, अमाउंट विच इज़ टू बी रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग द बॉन्ड। जब आप उसी एक एसेट को जब बेचने के लिए बाहर लेकर आएंगे, अब वो बॉन्ड भी हो सकता है, वो किसी किस्म का भी कैपिटल एसेट हो सकता है। इफ़ यू आर गोइंग टू सेल दैट, तो हाउ मच अमाउंट यू विल रिसीव। जब आपके पास कोई एसेट है, आप उसको सेल करते हैं, तो समटाइम्स उसके ऊपर टैक्स होता है, समटाइम उसके ऊपर कोई फ्लक्चुएशन कॉस्ट होती है। तो आप क्या करेंगे, सेल वैल्यू के लिए आप फेस वैल्यू में से सब्सट्रैक्ट करेंगे ऑल कॉस्ट जो उस वक्त उस एसेट को बेचने पर कॉस्ट आ रही हैं, उनको आप लेस कर दें तो आपके पास फेस प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट आपने समझना है ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन एक टाइम पीरियड होता है और नॉर्मली इसको एन से डोनेट करते हैं। ओके, अब उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और इसको आप स्मॉल आर से समझ लीजिए। अच्छा, ये बातें हमारी बहुत पहले पिछले सेमेस्टर्स के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज मैटर। फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एन एसेट। सेल वैल्यू मीन हाउ मच अमाउंट यू एक्सपेक्ट टू गेट फ्रॉम एनी एसेट आफ्टर सेलिंग इट। और वो कैसे होती है, जो फेस प्राइस है, अगर उस वक्त कोई कॉस्ट है वो आप लेस कर देंगे, कोई डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं पॉजिटिव, उनको आप ऐड कर देंगे। मतलब अगर कुछ इसके साथ डिस्काउंट मिल रहा है लेकिन वो प्लस वाला डिस्काउंट है, और प्लस वाले डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड हम पूरा ही लिख देते हैं, वो आप प्लस करेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी डिस्काउंट विच यू आर अलाउंग, which you have permitted, that would be called discount allowed. In short meanings, but just consider it, you will take face value and will deduct any cost and will add any income at the time of selling. You will get the sale price. ड्यूरेशन टाइम पीरियड को जैसे मैंने आपको कहा, इसको एन भी कह सकते हैं एंड यू मे ऑल्सो कंसिडर इट एज टी, स्मॉल टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आपके पास है। ये सिर्फ कुछ टर्म्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है ताकि हम अगर किसी फार्मूले में इसको यूज़ करें तो आपको पहले से ही उसकी कुछ कंडीशंस का पता हो। अब आइए ज़रा क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पहले नाम बता के वो कह रहा है कि उसके पास 1000 पार वैल्यू बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स एक्चुअली आप कंसिडर कर लीजिए कि एक तरह का लोन है। डिबेंचर्स की कंडीशन भी आपको पता होगी और लोन की कंडीशन भी आपको पहले से पता हो। अच्छा, अब होता क्या है कि व्हेन यू आर विलिंग टू गेट लोन फ्रॉम समवन, तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये इतना पॉपुलर मेथड नहीं है, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में मेथडोलॉजी ये है, इफ़ यू वांट टू टेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड और ऑर्गेनाइजेशन इज़ टेकिंग लोन फ्रॉम आउटसाइड, जिसको आप डेट फाइनेंसिंग का नाम देते हैं, तो in place of that, in return of this, what you will have to do, you will give a bond where you will give your signature, where you will put your promise that amount would be paid after 10 years or 12 years or 15 years, and how much interest would be paid. You just consider it as a receipt. जैसे आप किसी से पैसे लेते हो और वो कह रहा है कि आप लिख कर दें कि कितने पैसे आपने मेरे से रिसीव किए, तो उसको आप एक रिसीट बना के दे देते हैं। इसी तरह से प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि जब आप किसी से लोन लेते हैं, लोन में अमाउंट तो आपके पास आ गई, तो आप उसके लिए क्या एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो अप करवा रहे हैं। तो एक पेपर, जैसे स्टाम्प पेपर होता है, तो आप स्टाम्प लेंगे, उसके ऊपर राइटिंग करेंगे और यू विल एक्सेप्ट दैट you have taken loan from that particular person, and then you will make a promise how many years after you will be paying this loan back, and then you will be making promise how much interest you are paying per annum. तो कुछ चीज़ें जो कंडीशनल उसके साथ होंगी वो आप लिख देंगे और प्रॉमिस करेंगे, और ये स्टाम्प पेपर एज अ प्रूफ डिबेंचर होल्डर के पास वापस चला जाएगा।
अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास एक बॉन्ड है जो हमने इशू करना है और उसके बदले में हमें $1000 रिसीव होंगे। अच्छा जी, अब जब आपके पास $1000 आएंगे तो ऑब्वियसली आपको उसकी कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी। वो एज आई हैव टोल्ड यू दैट इफ़ यू आर रिसीविंग लोन फ्रॉम समवन यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट। वो 10% है, 12% है, 15% है, वो इंटरेस्ट आप उसको पे कर रहे होंगे। अब आप पहले तो मुझे ये बताइए कि ये 1000 के आगे पार वैल्यू लिखी हुई है, तो जब मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और मैं नोट करने लगा हूँ कि ये 1000 क्या चीज़ है, तो बताइए मैं इसके साथ क्या लिखूँ। तो आई विल डोनेट इट विद एफ। और ये हमने क्या डिसाइड किया था कि फेस वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एनी एसेट और बॉन्ड, उसको आप फेस वैल्यू बोलते हैं। तो अब फेस वैल्यू मेरे पास है 1000। ओके, जो दे रहा है ना, तो हम जस्ट उसको नोट कर रहे हैं। 1000 एनुअल इंटरेस्ट रेट 12% है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने डिस्कस किया और उसको हमने आर से डोनेट किया। तो स्मॉल आर आपके पास है 12%। होप सो ओके 12%। सो यू विल बी राइटिंग 12% इन फ्रंट ऑफ स्मॉल आर। अब आगे चलते हैं, फिर वो आप अच्छा कूपन रेट जो है फॉर द टाइम बिंग आपने इंटरेस्ट रेट समझना है, यानी कि आप उससे जो लोन रिसीव कर रहे हैं इसके बदले में 12% पर एनम आप उसको पे कर रहे होंगे। यहाँ पीछे एक और चीज़ भी हमें मिली है दैट इज़ 15 ईयर्स, और आपने इसको भी नोट करना है। और हमने कहा टाइम पीरियड जो है वो n है, तो आप n भी ले सकते हैं और t भी ले सकते हैं। n इज़ इक्वल टू 15 ईयर्स। जो प्रोसेस वो आपको दिखा रहा है आप जस्ट उसको नोट कर रहे हैं। अब एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो हमने यहाँ डिस्कस की है कि उसकी सेल वैल्यू अब आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से आप देखिए बॉन्ड कैन बी सोल्ड फॉर रुपीज़ 1010। सेल प्राइस तो उसकी 1010 है, लेकिन क्या इसके ऊपर कोई एक्सपेंस भी आ रहा है? फ्लोटेशन कॉस्ट 30 है। ओके, अब यहाँ पर जब आपने सेल प्राइस निकालनी है तो मैंने आपसे ये कहा है कि उसमें जो उसकी फेस प्राइस है, सेल प्राइस है, और उन सब कॉस्ट को आपने सब्सट्रैक्ट करके बताना है। अब देखें आपकी ओरिजिनल प्राइस थी 1000, लेकिन आप उसको बेच रहे हैं 1010 के ऊपर, तो इसका मतलब 10 रुपीज़ आपके पास प्लस हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर अगर टोटल प्राइस निकालनी है तो फेस प्राइस है उसके ऊपर 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, मगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 30 रुपीज़, वो आप साथ में पुट कर रहे हैं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आप 1000 वाले एक एसेट को जब 1010 का बेचेंगे तो 10 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है और साथ में 30 रुपीज़ जो है वो उसकी कॉस्ट है। यूँ भी लिखा जा सकता है या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जो नेट सेल प्राइस आपको रिसीव होएगी वो हाउ मच 110 1110, ये 1010 है 1010 तो टोटल अमाउंट यू विल रिसीव, लेकिन इसके ऊपर जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ है। आप अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 1010 रुपीज़ इज़ टोटल अमाउंट यू आर रिसीविंग आफ्टर इशूइंग दैट बॉन्ड, बट देर इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ₹30। तो अब आप मुझे बताइए जो एस नेट होगा वो कितना होगा। 1010 में से 30 रुपये आप माइनस कर देंगे तो यू विल गेट 980, दैट इज़ योर सेल प्राइस। पता चल गया आपको? तो फेस वैल्यू 1000 है लेकिन सेल प्राइस उसकी 980 है। ओके, अभी क्वेश्चन के अंदर हमने इनपुट सारे देख लिए हैं, अब उसकी रिक्वायरमेंट चल के देखते हैं कि वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है। एक और बात डिस्कशन में आ रही है कि 40% टैक्स ब्रैकेट है, इसको अभी हम देखते हैं। सबसे पहले वो बात कर रहा है नेट प्रोसीड्स, यानी कि आप जब बॉन्ड इशू करेंगे तो आपको पैसे कितने मिलेंगे। अब आप गौर से बात समझिएगा। द फेस वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड इज़ 1000 रुपीज़। 1000 रुपये का बॉन्ड है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बॉन्ड कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक पेपर है, एक स्टाम्प पेपर है, वेयर द पर्सन हु इज़ टेकिंग लोन विल राइट अ प्रॉमिस दैट आफ्टर हाउ मेनी ईयर दिस लोन वुड बी रिटर्न, हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी पेड, जस्ट अ स्टेटमेंट वुड बी रिटर्न ऑफ एक्सेप्टेंस दैट वी हैव टेकन द लोन। जब ये बॉन्ड आप साइन करके किसको देंगे? द पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग द लोन। ये बॉन्ड उसके पास चला जाएगा और वो एक्चुअली उसके पास 1000 लिखे हुए बॉन्ड के ऊपर। मगर दो काम हो सकते हैं जब आप लोन ले रहे होते हैं,
तो इट मीन्स अगर आपकी रेपुटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप उस बॉन्ड को इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट फॉर 1000 आप उसको 1010 पे, 1100 पे, 1200 पे, यानी प्राइस मोर देन ओरिजिनल प्राइस यू कैन सेल इट. और अगर लेट्स से योर फाइनेंशियल पोजीशन इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग देन यू विल नॉट बी एबल टू सेल दैट बॉन्ड फॉर मोर देन द ओरिजिनल प्राइस. समटाइम्स यू विल हैव टू सेल इट फॉर लेस देन फेस वैल्यू. 1000 रुपये का बॉन्ड है, आप 950 का, 930 का बेचेंगे. अब आपके सामने मुझे ये बताइए कि जब 1000 रुपये का बॉन्ड आप उसको दे रहे हैं, आपको पैसे कितने मिलेंगे, वो हम ऑलरेडी यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर चुके हुए हैं. हमने उस 1000 के बॉन्ड को 1010 का बेचा. इसका मतलब है कि वी आर हैविंग स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इशूइंग अ बॉन्ड ऑफ ₹1000. एक रिसीट हम इशू कर रहे हैं, उसके ऊपर 1000 लिखा है कि हम तुमसे 1000 रुपीज़ लोन ले रहे हैं, लेकिन इसके रिटर्न में उससे हम 1010 रुपये ले रहे हैं. वो पे 1010 कर रहा है और जो रिसीट लेके जा रहा है वो सिर्फ 1000 की लेस कर रहा है. लेकिन ऐसा कब होगा? नोबडी इज सो स्टूपिड टू गिव यू 1000 रुपीज़ और जो आप सेल कर रहे हैं, जो प्राइस ले रहे हैं वो ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं और उसके ऊपर जो रिसीट इशू कर रहे हैं वो कम. अब आप मुझे बताइए कि जो बंदा आपको लोन दे रहा है वो आपसे जो रिसीट लेके जा रहा है वो 1000 की है, यानी उस पर आपने प्रॉमिस किया कि वी हैव टेकन अ लोन ऑफ 1000. वो रिसीट लेके जा रहा है और बदले में आपको 1010 रुपये दे रहा है, यानी मोर देन द अमाउंट ऑफ लोन. तो ये कब होता है? जब फाइनेंशियली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन पैसे एज अ लोन मांग रही हो. लेकिन कुछ गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं, कुछ गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है. ये जो 30 रुपये जहाँ हमने हाईलाइट किया हुआ ना, 30 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट है जो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी है, द ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ टेकिंग लोन. तो वी आर टेकिंग लोन and we will be paying cost upon that debenture, cost upon that bond. तो आपके पास 1000 रुपये का बॉन्ड आपने इशू किया, उसकी सेल प्राइस 1010 थी, मगर कॉस्ट आपने पे करनी है. तो 30 रुपये कॉस्ट के बाद जो आपके पास नेट अमाउंट आई है वो 980 है. और आपने इसी का नाम जो रखना है वो नेट सेल प्रोसीड रखना है. हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी सिर्फ समझते हुए, तो ये पता नहीं था कि रिक्वायरमेंट में भी ये आएगा. ये हमारे पास है नेट सेल प्रोसीड्स. ओके, इसको थोड़ी सी जगह कम है तो पूरी जगह बना लेते हैं. नेट सेल प्रोसीड्स आपके पास आ गई है 980 रुपीज़. और अब आप देखिए नेक्स्ट वो क्या मांग रहा है, शो कैश फ्लोज. बी पार्ट के अंदर वो आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आपने कैश फ्लोज शो करनी है. अब यहाँ पर आउटफ्लोज भी हो रही हैं और इनफ्लोज भी हो रही हैं, तो आप दोनों चीज़ें शो करें. यहाँ पर जो कैश फ्लो इन पहले शो करवा देते हैं और यहाँ पर कैश फ्लो लेकिन आउट शो करवा देते हैं. सबसे पहले इन देखिए, आपका कॉन्सेप्ट में बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत क्लैरिटी के साथ होना चाहिए कि आपने लोन लिया, यू आर द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव टेकन द लोन, और इसके बदले में यू हैव इशूड अ बॉन्ड. एक पर्ची के ऊपर, एक पेपर के ऊपर यू हैव मेड द प्रॉमिस एंड यू हैव इशूड दैट पर्ची टू द पर्सन फ्रॉम हुम यू हैव टेकन लोन. और आपके पास पैसे आ गए. अब पैसे आएंगे तो कितने आएंगे? वो बॉन्ड एक्चुअली 1000 रुपीज़ वाला था जो उसको दिया, मगर उससे 1010 रुपये आए और फिर आपने उसकी कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट जो प्रोसीजर होता है उसके बदले में 30 रुपये दिए, तो असल अमाउंट आपके पास 980 आई. तो आप मुझे बताएं ये इनफ्लो में जाएगा या आउटफ्लो में जाएगा? तो देन समबडी वुड डेफिनेटली बी हैविंग करेक्ट आंसर, 980 इज़ इनफ्लोज. तो ये पैसे आपके पास एज अ लोन आ गए और द पर्सन फ्रॉम होम यू हैव टेकन लोन उसको आपने वो पर्ची दे दी, यानी बॉन्ड्स फिल करके दे दिया. तो कैश फ्लो पहला 980 आपके पास है. अब आप मुझे बताएं आउटफ्लोज क्या होंगे. अब आप यहाँ देखिए 12% पर एनम आप पे कर रहे होंगे. और आपने एक बात याद रखनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. इसको वैसे मुझे लिख के भी देना चाहिए, लेकिन आप समझ के रखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. यहाँ कहीं ऐसे मेंशन कर देता हूँ, आइंदा से भी याद रखिएगा, ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने 12% कैलकुलेट करना है या 14% या 15% या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यू विल अप्लाई दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन फेस वैल्यू.
आउटफ्लो क्या होगा, यू हैव टेकन अ लोन ऑफ 1000, अमाउंट एक्चुअली रिसीव 980। अब आप उसको जब आफ्टर अ ईयर, आफ्टर अ मंथ, जो भी आपने उसके साथ डिसीजन लिया हुआ है, लेट्स से आफ्टर अ ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे 12%, तो वो पैसे आपके पास से जाएंगे या आएंगे? 980 का लोन लिया तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट है वो आप उसको पे कर रहे होंगे। तो फिर फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पे करना है इंटरेस्ट, और किस पे करना है, यहाँ आपको मैंने बताया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज़ हाउ मच, 1000 इज़ टोटल अमाउंट of face value, so you will be calculating 12%, multiply by 12 and divided by 100. This way you have calculated rate of interest, और ये rate of interest कब का होगा, आफ्टर अ ईयर, मतलब ईयर 1 में आप उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। इन द सिमिलर मैनर next year means year 2, what will happen, as you have taken loan for the longer period of time, when second year will pass you will have to pay interest. And how you will calculate that rate of interest, as I have mentioned, you will calculate always on face value. Face value is 1000 and you are needed to calculate 12%, 12 divided by 100, and this way second year interest is being calculated. Now year 3, again a full year has been passed and you are liable to pay interest for the third year, and similarly interest would be calculated on face value, which is 1000, and multiply by 12%, which is rate of interest. Okay, you have calculated 3 years interest. Now for how many years you will be calculating same rate of interest, how many years, for how many years? यहाँ पर आपने पहले ही मेंशन किया बुक से पढ़ के कि दैट लोन हैज़ बिन टेकन फॉर 15 ईयर्स। अच्छा, चूँकि लोन मैंने आपसे ये कहा कि इट इज़ फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ वाई इट इज़ कैपिटल फाइनेंसिंग। आपने कहीं से लोन लेकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दिया, मगर बहुत लंबे अरसे के लिए लोन है, तो ये कैपिटल फाइनेंसिंग है। और कैपिटल फाइनेंसिंग के अंदर जो एक पहली ब्रांच हमने पढ़ी थी डेट फाइनेंसिंग, क्योंकि आप इक्विटी यानी अपने पैसे नहीं लगा रहे, ऑर्गेनाइजेशन लोन लेकर पैसों को बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रही। तो आप मुझे बताइए कब तक चलेंगे? तो फिर ईयर नेक्स्ट 4th आएगा, आप वहाँ पे करेंगे, 5th आएगा आप वहाँ पे करेंगे, 6th आएगा आप वहाँ पे करते जाएंगे। इस तरह से आप चलते चलते यू हैव रीच टू ईयर 15। एट 15 ईयर्स व्हाट यू विल बी पेइंग, अगेन फेस वैल्यू आप यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 12 and divided by 100. In this way 15th ईयर में भी आप 120। ये सारे हमने क्या किए हैं, आउटफ्लोज कैलकुलेट किए हैं। सो देयर विल बी 15 आउटफ्लोज फॉर वन सिंगल इनफ्लो। हर साल आप ये 120 पे करते जाएंगे, और फाइनली अब आफ्टर 15 ईयर्स व्हाट विल हैपन, एट एंड ऑफ 15 ईयर्स, चूँकि आपने लोन लिया हुआ था ना उससे, एट द एंड ऑफ 15th ईयर वो आएगा आपके पास, एंड ही विल शो यू दैट बॉन्ड विच यू अपॉन विच यू हैव मेड द प्रॉमिस दैट यू आर टेकिंग लोन फॉर 15 ईयर्स. So at start you have filled the bond and delivered that bond to the person from whom you are taking your loan, that is your creditor or account payable. उससे 980 रुपये लेके आपने एक रसीद उसको दी हुई है. अब 15 साल गुजर जाने के बाद वो वापस आया आपके पास और आपसे कह रहा है कि जी हाँ लोन अब मैंने आपको 980 का दिया था, तो अब मुझे पैसे वापस कर दें. तो जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ दैट एसेट or original value of that bond is 1000, so you will be paying back 1000 rupees at the end of the year. अच्छा, आप ये बताएंगे ये आउटफ्लो होगा कि इनफ्लो होगा? तो चूंकि अब आप ये वापस उसको दे रहे हैं 1000 रुपीज़, तो इट वुड बी योर आउटफ्लो, बट एट द एंड ऑफ 15th ईयर 1000 रुपया आप उसको वापस कर देंगे. सो दिस इज़ टोटल प्रोसीजर, टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द लोन विच यू हैव टेकन. आपने लोन लिया, आपके पास अमाउंट आ गई, बॉन्ड्स उसको फिल करके दे दिया, वो बॉन्ड वापस आपको देने आया और आपने उसको असल कीमत उसकी लोन की वापस कर दी. हमारा जो ए पार्ट था दैट वाज जस्ट दिस. आपने नेट सेल प्रोसीड्स पहले ही कैलकुलेट करके रखी हुई थी, बस उसका नाम आप ये रख दें कि ये ए पार्ट का जवाब है, और इसको आप मैच भी कर लीजिएगा, आंसर्स दिए होंगे. और सेकंड आपने जो पार्ट सॉल्व किया वो
कैश फ्लोज थे, जो भी पॉसिबल कैश फ्लोज हैं हमने सारे लिख दिए, चाहे वो इनफ्लोज थे, चाहे वो 15 साल के आउटफ्लोज थे। आप चाहें तो 15 साल तक का लिखें या डैशेस डाल दीजिएगा, वो अंडरस्टूड होगा कि सब अमाउंट सेम चल रही हैं। अब आप ये देखिए कि आपको सी पार्ट के अंदर क्या इन्विटेशन मिल रहा है, कैलकुलेट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, यहाँ एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लीजिए। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें हम आईआरआर को कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। चूँकि सारे क्वेश्चंस का ये हिस्सा नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर है, तो बजाय इसके कि यहाँ पर बहुत सारा टाइम आपको मैं बताऊँ कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये उससे मैचिंग चीज़ है, उसकी बजाय वी आर गोइंग टू लीव दिस पार्ट, और व्हेन वी विल बी स्टडिंग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देयर यू कैन अंडरस्टैंड इट। और या फिर मैं शायद इसको अभी मेंशन भी कर दूं आपको। डी पे चलते हैं। डी में वो क्या कह रहा है, अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला आपको यूज़ करना है, और अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला के ज़रिए आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे डेट की, यानी आपके ऊपर ये कॉस्ट कितनी आ रही है। तो सी पार्ट के अंदर एक्चुअली ही इज़ विलिंग अस टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्रू approximation फॉर्मूला। ये अब हमारी रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है लेकिन अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला लगा कर। पहले मैं आपको वो फार्मूला इंग्लिश में लिख के देता हूँ, और चूँकि इनपुट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये आपको फेस वैल्यू पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, नंबर ऑफ ईयर पता है, सेल वैल्यू पता है, तो वी आर यूजिंग द सेम थिंग ओवर हियर। फार्मूला के अंदर आप क्या करने जा रहे हैं, पहले आप उसको फॉलो अप कर लें। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक आपने अबव साइड पे लिखना है, एक आपने डाउन साइड पे लिखना है। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी से ही आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा लेते हैं। ऑलराइट जी, ये आपके पास फार्मूला है अप्रॉक्सीमेशन। इसमें सबसे पहले आपने इंटरेस्ट की अमाउंट, जिसको आप आई बोल रहे हैं, या इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है आपने। अगर फ़र्ज़ करें आपका इंटरेस्ट था यहाँ पर 12%, यू हैव कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट वाज 120, तो सेम वही 120 आपने यहाँ लिख देना है। अगर 1000 फेस वैल्यू है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें आप ऐड करेंगे। यहाँ पर आप एक बड़ी ब्रैकेट को साथ रखिए, फिर आपने फेस वैल्यू में से आप लेस करेंगे सेल प्राइस, सेल वैल्यू को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डिवाइड करेंगे n यानी नंबर ऑफ़ ईयर्स पे। चलें लिख ही देते हैं, टाइम पीरियड या ईयर्स ही लिखते हैं, और फिर आप बड़ी ब्रैकेट लगा के इसे क्लोज कर दें। अब इसके नीचे आपने डिवाइड करना है, और फिर आपने फेस प्राइस में प्लस करना है सेल प्राइस को, और इसको डिवाइड करना है 2 पे। 2 फार्मूला का कांस्टेंट है, बस ये समझ के रखिए। ओके जी, ये अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला कहते हैं। अब इसको हमने अभी लिखा है इंग्लिश के साथ, और आप इसको एब्रीवेशन के साथ याद रखने के लिए अगर करना चाहें तो वो एब्रीवेशन भी मैं आपको साथ लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट है, आप उसकी जगह आई पुट करें, उसमें प्लस करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, फेस वैल्यू में प्लस करना है सेल वैल्यू को, और इसको आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स पे, उसको n का नाम दे दें आप, और ब्रैकेट आप क्लोज कर दें। ओके, ये अपर पार्ट हो गया। ब्रैकेट आप क्लोज करके इसके लोअर पार्ट को आप समझने की कोशिश करें। ब्रैकेट ओपन करें, फेस वैल्यू में सेल वैल्यू प्लस करनी है और डिवाइड करना है 2 कांस्टेंट पे। दिस इज़ योर approximation formula. So what we have done, we have written in English over here, in symbolics we have written over here. अब वो आपसे रिक्वायर कर रहा है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर एंड आफ्टर बाय एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला। ओके जी, तो आपने अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है। अब इनकी वैल्यूज़ आपने लिखनी है। देखिए चूँकि क्वेश्चन तो सेम ही है, तो आपने इसका इंटरेस्ट भी पहले ही कैलकुलेट कर लिया हुआ है, आपको इसकी फेस प्राइस भी पता है, आपको इसकी सेल प्राइस भी पता है, जो कि आपने कैलकुलेट, ये एस निकाला हुआ 980। सारी वैल्यूज़ वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। व्हाट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली बी पोस्टिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा जी, अब
सबसे पहले आपको जो अमाउंट रिक्वायर है वो इंटरेस्ट है, दैट इज़ 120। आप ऊपर देखिए यहाँ पर हमने इंटरेस्ट बार बार निकाला हुआ है 120 फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 2। नेक्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू पुट प्लस, देन ब्रैकेट, फेस वैल्यू आप देखिए 1000 हमने पहले लिखी हुई है, सबसे ऊपर वाली लाइन में फेस वैल्यू है, सो पुट 1000। उसमें आपने सब्सट्रैक्ट करना है सेल प्राइस को। यहाँ पे आप देखिए फेस प्राइस में सेल प्राइस आप ऐड करेंगे। ओके, और फेस प्राइस आपको आपने लिखी हुई है दैट इज़ 1000, सबसे ऊपर वाली लाइन में पुट 1000 ओवर हेयर। इसमें प्लस करना है सेल वैल्यू को, और सेल वैल्यू यहाँ आप चेक कीजिए ये कैलकुलेट करके 980 आपने लिखी हुई है, तो आप सब्सट्रैक्ट करें 980 और फिर आप ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, और फिर इसको डिवाइड किस पे करना है, नंबर ऑफ़ ईयर्स पे। फार्मूला आप चेक करें, हम इस सिचुएशन में आगे तक पहुंच गए हैं, डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ ईयर्स पे। वो नंबर ऑफ़ ईयर्स भी हमने पहले ही कैलकुलेट करके लिखे हुए हैं, दोज नंबर ऑफ़ ईयर्स आर 15। ये 15 भी आपने पुट किया, और चूँकि इसको डिवाइड करना है आप डिवाइड कर दें। अब ब्रैकेट्स आप क्लोज़ कर दें, और सिर्फ बड़ी ब्रैकेट आपको ज़रूरत है। ये ऊपर वाला पार्ट आपने सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद आपने यही चीज़ें नीचे वाले पार्ट के अंदर लिखनी है, बस फ़र्क ये है कि उनकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। नीचे वाले पार्ट में आपको चाहिए फेस प्राइस, आप इधर फोकस रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फेस प्राइस। तो इस ब्लू स्क्वायर से ऊपर जो ये नज़र आ रहा है वहाँ पर रखिए फेस प्राइस 1000 है, उसमें आपने प्लस करना है सेल प्राइस जो कि 980 है। 1000 के अंदर 980 आप प्लस करेंगे, इसको ब्रैकेट्स लगाएं, कैलकुलेटर पे ये ज़रूरी है, और डिवाइड करना है 2 विच इज़ कांस्टेंट। लेकिन जी इस तरह से आपने मैथमेटिकल वे के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिया, और फाइनल वर्डिक्ट लेने के लिए अब आपने कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ एक्सेल भी यूज़ हो सकता है। ओके, एक नज़र बस इसको अच्छी तरह से देखिए, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डिनोमिनेटर्स चाहिए, यानी एक अमाउंट अबव लिखनी है और एक अमाउंट डाउन लिखनी है। इंटरेस्ट आपके पास था 120, फिर आपने इसमें प्लस करना है, और यहाँ पर दोबारा यही ऑप्शन यूज़ करें, और अपर पार्ट के अंदर आपने ब्रैकेट में लिखा था फेस प्राइस माइनस सेल प्राइस। फेस प्राइस थी आपके पास 1000 और सेल प्राइस थी 980, फिर ब्रैकेट बंद कर दी थी। डिवाइड आपने n पे करना था विच वाज 15 ईयर्स, एंड यू वर सपोज टू राइट द सेम एट द डाउन साइड। दोबारा आपको दो चीज़ें चाहिए, और एट अबव फेस माइनस सेल प्राइस करनी थी, तो 1000 माइनस सेल प्राइस 980 ब्रैकेट में, और नीचे फिक्स था 2, यहाँ पर ब्रैकेट थी। ऑलराइट, सो दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड योर अमाउंट, और अब आप इस अमाउंट को वहाँ पुट करेंगे। here was plus, so this way you have calculated your value। अब ये आया 0.1225। आप यहाँ आए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप यहाँ पर लिख दें 0.1225, लेकिन व्हाट इज़ नेक्स्ट 12255, और चूँकि आगे 5 है तो आप इसको चेंज करके अलग भी कर सकते हैं। अब इसको अगर परसेंटेज, ये यहाँ पर जो अमाउंट आई है इसके आगे आप टाइम्स लिख दें। आप इसको चाहें तो परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल आप इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास परसेंटेज आ गई, और इसके साथ परसेंटेज आप मेंशन कर दें। 12.255 इज़ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिख दीजिए इसके साथ। ओके, या फिर इसको सिंबॉलिकली भी आप शो करवा सकते हैं, तो आप के का नाम इसको देना है, दिस वुड बी योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑलराइट, अच्छा जी, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने यहाँ निकाल ली, और फिर इसके साथ आप सिर्फ यहाँ लिख दें के इज़ इक्वल टू, थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट अगर होगा तो दैट वुड बी मोर कंफर्टेबल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा पार्ट था सी, जो हमने अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया।
ओके, अब डी फार्मूला, डी में देखें क्या कह रहा है वो। ओके, ई पार्ट वो चूँकि सी और डी को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, और सी हमने कहा है कि उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं कुछ देर के लिए। डी हमारा कंप्लीट हो गया, बी कंप्लीट हो गया, ए कंप्लीट हो गया। तीनों आंसर्स आपके पास हैं, उनको आप कंपेयर कर लीजिएगा। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैड ट्राइड टू कन्वे। यहाँ पर 3 पार्ट्स को आपने सॉल्व करना था। नेट प्रोसीड्स भी आपने फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करके सेल प्राइस से नेट प्रोसीड्स निकाल लिए। इनफ्लोज और आउटफ्लोज आपने कैलकुलेट कर लिए, अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला आपने अप्लाई किया, एंड देन यू हैव कैलकुलेटेड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑलराइट, इस तरह से हम क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। बस यहाँ तक ही आज की हमारी बात थी। अगर लेट्स से आफ्टर दिस मच टाइम इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क ओपनली एनी क्वेश्चन थ्रू मैसेजेस, टेक्स्ट, और you can meet me directly as well. We have solved question number 9.2. Hopefully we will meet again for the solution of any other question in future, inshallah. And until then, please take care of yourself, and I'm requesting you to pray for me as well. Okay, permit me. Allah Hafiz.